Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 14 of class 8, that is understanding quadrilaterals. So first of all, discussing about quadrilaterals, firstly we discuss some terms. First of all, what is a plane surface? So as you see that this is a sheet of paper, so this is known as plane surface. Okay, so plane has no thickness and it extends indefinitely. Okay, so as you see that when we join here, I have some points. When we join these points without breaking, or you can say that without lifting the pen or pencil, the curve is formed. Okay, so this is known as a plane curve. Clear? So plane curves are of 4 types. First one is simple curve, closed curve, open curve, simple closed curve. Okay, there are 4 types of plane curves: simple curve, closed curve, open curve and simple closed curve. First of all, we will discuss about simple curve. That what is a simple curve? A curve which does not cross itself, except that if you draw it, the starting and stopping point may be the same, is called simple curve. Like ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. सपोज दिस इज अ सिंपल कर्व. ठीक है कि लाइक दिस इज अ सिंपल कर्व? नो, बिकॉज इट क्रॉसेस इटसेल्फ. क्योंकि ये अपने आप को ही क्रॉस करगी ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है. ठीक है, सिंपल कर्व वो होती है कि जो अपने आप को क्रॉस ना करे. लाइक दिस इज अ सिंपल कर्व, this is a simple curve, but is this a simple curve? No, because ये खुद को ही क्रॉस कर रही है. तो सिंपल कर्व क्या होती है? कर्व विच डज नॉट क्रॉस itself. Clear? Next is closed curve. A curve which starts and stop at the some point is known as a closed curve. For example, हमने ये ड्रॉ की थी, ये क्या है? closed curve है. ठीक है, जिसका ये देखो मतलब बंद हो रही है जो, दैट इज नोन एज क्लोज्ड कर्व. लाइक दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट इज ओपन कर्व. अ कर्व विच इज नॉट क्लोज्ड मीन्स दैट हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट. ओके, लाइक its starting point is this one and ending point is this one. तो जिनके starting और ending point different हो, उनको हम क्या बोलते हैं? open curves. ठीक है, और open होनी चाहिए. Clear? Next is simple closed curve. अब simple closed curve क्या होगी? देखो नेम में ही है, simple भी होनी चाहिए और closed भी होनी चाहिए. तो simple हमने क्या बोला था कि जो अपने आप को क्रॉस ना करे, और क्लोज्ड जो बंद होती है. ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दो प्रॉपर्टीज को. तो लाइक दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. ठीक है, तो मतलब सिंपल भी होनी चाहिए और क्लोज्ड भी होनी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड फिगर are made up of line segments. As you know that simple, like this is a rectangle, this is made of line segment. Okay, so this is a simple closed curve that is made of line segment. So it is known as a polygon. It is known as a polygon. तो polygon क्या होती है? Polygon is a simple closed figure made up of लाइन सेगमेंट्स. मतलब सिंपल भी होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए. लाइक दिस वन. ओके, लाइक दिस वन. दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन दैट इज सिंपल एंड क्लोज्ड. किसी को एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं करनी ना. क्लियर? सो
we have two types of polygons, convex polygon and concave polygon. So here are some examples of convex polygon and concave polygon. As you see in this figure, all these are polygons, and in this figure these are not polygons, because we say that like this it is not simple polygon. Okay, so these figures are not polygons. Next is what is a convex polygon? It is a simple polygon where each exterior angle is less than 180 डिग्री, इंटीरियर सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर वाला एंगल, लाइक अब ये वाली फिगर है, इसमें अंदर वाला एंगल ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसके जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, 180 से छोटे, ठीक है। देन हम क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्स पॉलीगन। Next, second property is the segment connecting any two points of the polygon is wholly contained in the interior of the polygon। वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसके एंगल्स होने चाहिए वो 180 से लेस होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज कनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। कि जो एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल तो 180 से बड़ा होना ही चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। लाइक अब ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला जो एंगल है ये 180 से बड़ा है, ठीक है। इस एंगल को देख लो, ये भी एंगल क्या है, 180 से बड़ा। इन दिस फिगर दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, in this figure this angle and this angle is greater than 180 डिग्री। तो मतलब इसमें क्या है कि एक एंगल, कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए कनकेव में। क्लियर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, number of sides of vertices is 3। okay, so if polygon have 3 sides, then the figure is known as a triangle। okay, and sum of all angles of a triangle is 180 degree। as you know very well that in the triangle sum of all angles is equal to 180 degree। okay, if there are number of sides 4, अगर हमारे पास 4 sides हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। okay, so in quadrilateral all angles are sum of all angles is equal to the 360 degree। clear, because it when we join 2 points, these 2 points of quadrilateral, it breaks into 2 triangles। okay, and as you know the sum of this triangle is 180 and the sum of this triangle angle of this triangle is 180। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली इफ पॉलीगन हैव 5 साइड्स देन इट इज नोन एज अ पेंटागन। ठीक है, पेंटागन में क्या है, 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो वही सेम है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये 3 ट्रायंगल्स में ब्रेक होगी और हर ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। इट मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। और एंगल कौन से लेने हैं, इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ पॉलीगन हैव 6 साइड्स देन इट इज नोन एज अ हेक्सागन। ओके, and all sides of hexagon, pentagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon are equal. Okay, so and a hexagon, when we break it into different parts, it forms 1 2 3 4 ट्राइंगल्स। तो ये कितने ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाती है, 4 ट्राइंगल्स में। सिमिलरली अगर हमने सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 ट्राइंगल्स में ब्रेक होगी, 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 720 डिग्री। नेक्स्ट, इफ पॉलीगन हैव 7 साइडेड इट इज़ नोन एज हेप्टागन।
ओके तो सिमिलरली ये भी 5 ट्रायंगल्स में ब्रेक हो जाएगी. फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, this is a fourth, and this is a fifth. So we multiply 180 with 5, so answer is 900. So sum of all angles of heptagon is equal to 900. Similarly, 8-sided figure is known as octagon, and we multiply 180 with 6, and its answer is 1080. Next is 9-sided figure is known as nonagon, and sum of all angles of nonagon is 1260 degree. 10-sided figure is known as a decagon, and sum of all angles of decagon is known as 1000. Sum of all angles of a decagon is 1440 degree. Okay. तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया कि अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास n है, दैट इज़ कॉल्ड एनगन, और सम कितना होगा उसके इंटीरियर एंगल्स का, n-2 कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं. देखो यहाँ पे हमारे पास n क्या था, 10 था, तो हमने क्या किया, 10 - 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. क्लियर. जैसे 9 था, 9 - 2 किया 7, 8 - 2 किया 6. क्लियर. तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई इट विद 180 डिग्री. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज डायगोनल्स. व्हाट आर द डायगोनल्स? द लाइन सेगमेंट obtained by joining non-adjacent vertices are called डायगोनल्स. तो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ठीक है. जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो ये आएगी लाइन, दैट इज नोन एज डायगोनल. ओके. सो एज यू सी इन दिस फिगर देर आर 2 डायगोनल्स. क्लियर. नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. ठीक है. तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. तो जिस पॉलीगन की सभी के सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन. फॉर एग्जांपल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके. स्क्वायर, in square all sides are equal. So in the figure that whose all sides are not equal, that figure is known as irregular polygon. For example, rectangle, parallelogram. Okay. In the rectangle opposite sides are equal na, so all sides are not equal, so that's why this figure is known as irregular polygon. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन सरफेस, like plane sheet is known as a plane surface. Then we read about curve. ओके. सो जब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक कर्व बन जाती है. ठीक है, बिना पेंसिल उठाए. नेक्स्ट इज 4 टाइप्स ऑफ कर्व: सिंपल, क्लोज्ड, ओपन एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके. नेक्स्ट वी हैव पॉलीगन दैट इज मेड अप of line segment, and that is simple closed figure. There are 2 types of polygon: convex polygon and concave polygon. After that, classification of polygons, that 3-sided figure is known as triangle, 4-sided quadrilaterals. ठीक है. तो ये सारी क्या हैं? classification of polygons. After that we will discuss about diagonals, then regular and irregular polygons. In regular polygons all sides are equal, and in irregular polygon all sides are not equal. Clear? Next we will discuss about triangle. So as you know very well that a triangle is a simple closed figure that has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Okay. So it is also a polygon. Clear? So now we will discuss about classification of triangle. So first of all we will discuss about triangles on the basis of angle.
Okay, on the basis of angle there are three types of triangle. First of all, right angle triangle, acute angle triangle and obtuse angled triangle. ओके कि एंगल के बेसिस पे अगर हम एंगल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ट्रायंगल की थ्री टाइप्स होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल एटलीस्ट ओनली वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होना चाहिए, बाकी दो एंगल है वो 90 से छोटे होने चाहिए. ठीक है, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, एक्यूट में क्या होना चाहिए कि नेम से ही क्लियर है कि एक्यूट मीन्स एक्यूट एंगल, तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए, मीन्स लेस देन 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल. मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, बाकी के दोनों एंगल एक्यूट होने चाहिए. ठीक है, मीन्स एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल्स की साइड देखें तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रायंगल होती हैं. तीन टाइप्स की ट्रायंगल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्वी मीन्स equal, all sides are equal. in isosceles triangle only two sides are equal. ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है, सिर्फ दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. एंड इन स्केलन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट. कोई भी इसमें इक्वल नहीं होती, सभी की सभी डिफरेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाय साइज on the basis of size. Okay, so there are two types, similar triangles and congruent triangles. First of all, similar triangles. What are the similar triangles? That have same shape. मतलब similar triangle में क्या होता है, shape उनकी same होनी चाहिए, लेकिन वो size जो उनका है वो different हो सकता है. ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें ट्रायंगल्स शेप तो सेम है ना, लेकिन साइज क्या है दोनों का डिफरेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स साइज एंड शेप बोथ आर सेम. ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है कि साइड भी सेम होनी चाहिए और शेप भी क्या होनी चाहिए, सेम. क्लियर. Next we have angle sum property of triangle. So as you know that sum of all angles of a triangle is 180 degree. Okay, so remember it that sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. So let us discuss the example number 1. First example is two angles of a triangle are complementary. दो एंगल जो हैं ट्रायंगल के वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं. फाइंड द थर्ड एंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़े हुए हैं ना कि दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री का होता है. ठीक है, तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, थर्ड हमने फाइंड आउट करना है. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज A, B, C. These three are the angles of a triangle. And as you know very well that sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. अब उन्होंने बोला है दो एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है, तो कोई भी दो एंगल ले लो. सपोज हम ये दो एंगल ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री. ठीक है, प्लस C 180 degree. Now take 90 on right hand side, 180 degree minus 90 degree which is equal to 90 degree. So it means the third angle is 90 degree. Clear. Next is how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree. अब वो कह रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर उसका हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है. ठीक है, सपोज एक कोई फिगर है
हमें नहीं पता उसकी कितनी साइड्स हैं, बट उसका जो अंदर वाला एंगल है वो कितना है 165 डिग्री। तो ये फिगर नहीं बनेगी, मैंने जस्ट वैसे ही ड्रॉ करके दिखाया आपको, ठीक है। तो एज यू नो दैट सम ऑफ, हमें पता है सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ पॉलीगन, हमने अभी वो टेबल में किया था ना कि अगर एन एंगल हो तो उसका क्या फॉर्मूला आता है, n माइनस टू इज इंटू 180 डिग्री, यही हमने किया था ना एंड पे आके जो एक रिजल्ट निकला था दैट n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ओके, तो देखो हमने क्या किया था, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर 4 साइडेड फिगर है, ये क्या था हमारे पास साइड्स, ठीक है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ, जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे, ठीक है, सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या था n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब n हमारे पास 4 है तो 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 180 दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको वैसे भी पता है 4 साइडेड फिगर इज़ नोन एज क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो अभी हमने n साइड वाली एक पॉलीगन फाइंड आउट करनी है जिसकी n साइड्स हैं, ठीक है, और उसका हमें एक एंगल 165 का दिया हुआ है। तो n एंगल्स हुए, अगर n साइड्स हैं तो एंगल्स भी कितने होंगे n, तो एक एंगल 165 का है तो n एंगल्स कितने होंगे 165 डिग्री इंटू n। देखो 1 एंगल n है तो 2 एंगल कितने होंगे 2n होंगे, वैसे ही 165 डिग्री अगर एंगल है तो कितना होगा 165 डिग्री इंटू n। ओके, सो विच इज़ इक्वल टू, ये भी तो एंगल ही है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ओके, नाउ वी सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन द ब्रैकेट 180 डिग्री into n minus 360 degree. Now take this 180 on this side, 165 degree into n minus 180 degree into n minus 360 degree. Okay, sorry, is equal to minus 360 degree. Now subtract it, answer is minus 15 degree is equal to minus 360 डिग्री। नाउ टेक माइनस 15 ऑन दिस साइड माइनस 360, n आ जाएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू माइनस 360 अपॉन माइनस 15, माइनस कैंसिल विद माइनस एंड व्हेन वी डिवाइड इट इट्स आंसर इज 24। तो जो साइड्स हैं वो कितनी हैं उसकी 24। तो पॉलीगन है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन विद साइड्स 24। Next we have the next example, example number 3. One of angles of a triangle is 120 degree and the other two angles are equal. अब इसमें कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, लाइक ऐसे बनेगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल तो हमारे पास 120 डिग्री है, बाकी के दो जो एंगल हैं वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट जो इक्वल एंगल्स हैं वो क्या ले लिया x, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो x प्लस x इज इक्वल टू 2x plus 120 is equal to 180 degree. Now take this 120 on this side, 2x is equal to 180 degree minus 120 degree, 2x is equal to 60 degree. Now take 2 on this side, x is equal to 60 upon 2 which is equal to 30 degree. So जो बाकी के दो एंगल हैं वो कितने के हैं 30 डिग्री 30 डिग्री। Is that clear? Now here we have an exercise 14.1. okay, so everyone you have to solve this exercise. Okay, if there is any doubt then we will discuss that doubt in Zoom session. Okay.